अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, ये जो आप लोगों को सेशन नज़र आ रहा है ये रिलेटेड पीएचडी है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आज इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी गई थी मैं तो कि जो 3 ईयर पीएचडी और 7 ईयर पीएचडी के बारे में थी। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, अगर 7 ईयर पीएचडी में एडमिशन हो जाए तो पढ़ना भी बहुत आसान होगा और उसकी फ़ी वगैरह भी देनी बहुत इजी होगी। तो लेकिन जब पूरा सेशन सुना तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड थी। तो मैं मतलब आप लोगों को इसकी जो डिटेल्स हैं फ़ीस वगैरह की वो लास्ट पे बताती हूँ। लेकिन ओवरऑल जो सेशन मुझे समझ आया था, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है यहाँ पे एडमिशन, पॉसिबल है, ले सकते हैं एडमिशन, लेकिन फाइनेंशली थोड़ा डिस्टर्ब करने वाला है क्योंकि इनकी गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही और पीछे से हमारी कंट्रीज़ की भी जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट नहीं कर रही हैं। तो खैर, इन्होंने हमें इस सेशन के साथ साथ जब हमने अपनी थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम बताई कि हमें यहाँ जॉब के इश्यूज़ हैं, तो उन्होंने हमें ये थोड़ी सी वेबसाइट वगैरह बताई हैं। तो ये आप लोग भी इसको स्टॉप करके यहाँ पे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। ये देख लीजिएगा गौर से वो क्या चीज़ बता रहे हैं कि किस वेबसाइट पे आपने रजिस्ट्रेशन करानी है। तो ये स्पेसिफ़िक टीचिंग के लिए, अगर यहाँ पे आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों को जो है वो यहाँ टीचिंग की जॉब्स मिल सकें। और एक और डिफरेंस जो बताया था, एक और जो डिफरेंस है, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो स्कॉटलैंड में आपको जॉब मुश्किल से मिलती है, अगर इंग्लैंड में होंगे तो टीचिंग की जॉब बहुत इजीली मिल जाएगी। तो खैर, दौड़े दौड़े हम लोग तो टाइम पे पहुँचे, लेकिन यहाँ के एज़ यूजुअल बहुत पंचुअल टीचर वो ऑलरेडी मौजूद थे क्लास में। तो बस कार्स्टन था और जब मैं आई हूँ फिर उसके बाद ये एक और अफ्रीकन आ गई हैं और बस हमारी टोटल क्लास में से सिर्फ हम 3 लोग थे जो सेशन को अटेंड करने आए थे। शायद जब से हम एमएससी स्टार्ट की है तो एमएससी की शायद उतनी टेंशन नहीं है जितनी के पीएचडी के एडमिशन की है। तो खैर, आप लोग भी जो देखें इसको सुने। तो मैं लास्ट पे आपको फ़ीस, स्केजुअल और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। Or maybe just in general. So this is the university website. So that you find here study with us, no? And there you find postgraduate research, that is a PhD or MA usually, or MPhil. So there are different degrees you can study. If you go on this website, you lots of different informations about what it actually is, what kind of degrees there are. Predominantly, I would say there are 3 degrees you can study, which is an MPhil, which is like a master's again, but weirdly regarded a little bit higher, because it consists of usually as registered. That's a ZITS. What about those supply teachers? They don't immediately say that. I have applied. Yeah. That's all, no? In general, teaching in Scotland is via GTCF, I would say. So there's probably no way around this. Different in England, I think easier, especially if you start as assistant teacher, which may not sound great at first, because you maybe are experienced teachers. Apply for registration. There are ways of getting in where you can show that you already are a teacher in your own country, you already have a degree. And then you have to somehow show that what you do, what you can, is equivalent to what Scottish teachers are expected to do. Scottish teachers are expected to know. Sometimes I've heard this is successful, very often it isn't. Yeah. Independent and private? That students pay high fees to be taught there. But there are private schools as well. Is between independent and private, or there's? I think they are all private. These are all This private. is, I think, independent, most private. Okay.
So I think we If it is the same fees for a year, that won't justify that by saying there's teaching involved. There's a PhD there isn't. But here you have to do modules. People have to mark. You have to write essays. People have to mark essays and all this kind of stuff. Which then maybe also means that you don't want to do it. UK is not making it easy for us at all. Yeah, that is indeed It's not like that is indeed the case. No? So I wish students would look more into this country before they come here. Exactly. I feel at the moment, and I probably can say that because I'm German, I feel at the moment lots of students from Commonwealth countries come because they feel somehow connected. सो फ्रेंड्स ओवरऑल जो था फीस इसकी जो है वो 18,000 पर ईयर है, तो 3 सालों की 18 देनी पड़ेगी। तो अगर स्कॉलरशिप मिलता भी है तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वाला जैसे 4-5 हज़ार, तो फ़ीस तो बहुत टू मच है। सेकेंडली अगर 7 ईयर वाली में एडमिशन लेते हैं तो हमारा वीज़ा स्विच नहीं होगा। सो थर्ड ये है कि उन्होंने बोला है मई में इसके एडमिशन क्लोज़ हो चुके हैं, कुछ सीट बाकी नहीं है मैं एजुकेशन में ना, तो फिर भी कह रहे थे आप ट्राई करके देख लें। तो सबसे बेस्ट वे ये बोला है कि आप लोग पहले ट्यूटर ढूंढें फिर एडमिशन लें, फिर आपके लिए इजी रहेगा। अब इंशाल्लाह हमारी जैसे फ़ाइनेंस के साथ मीटिंग होती है तो अगर वो हमें बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप की ऑफ़र करते हैं तो मैं इंशाल्लाह वो वाली वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसमें अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने ये जो जॉब्स के हवाले से और भी कुछ सर्टिफिकेशन की भी बात की है। अगर हम वो सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो वो भी बहुत बेनिफिशियल होंगे। अल्लाह हाफिज़।